Isn't it good to be in the house of the Lord? क्या ये आनंद का विषय नहीं कि हम परमेश्वर के भवन में हैं? Hallelujah. हालेलुया। My friends, last Sunday we saw the authority of the Father. हमने पिछले सप्ताह देखा एक पिता का क्या अधिकार है, How the voice of daddy settles the issues of the life of children. कैसे पिता का स्वर, उसकी आवाज बच्चों की जिंदगी में चीजें We ठीक करती saw है। when fathers become quiet, enemy speaks in the हमने house. देखा जब पिता शांत हो जाते हैं, शत्रु बोलता है। And we encouraged every father to take dominion and authority that God has given to them. और हमने देखा, हमने कहा कि जितने भी पिता हैं वो उस अधिकार में चले जो परमेश्वर ने दिया है। Don't allow your mistakes to rob you from the identity God has given you. अपनी गलतियों को, अपनी पहचान चुराने मत दीजिए जो परमेश्वर की ओर से है। I tell you one thing, there is no perfect father on this planet. अब मैं बताऊंगा, इस पृथ्वी पे कोई भी सिद्ध पिता नहीं है। You know, children always have this objection, daddy doesn't give more time to us. अब बच्चों को हमेशा लगता है कि पिता समय नहीं देते, And it's a global problem. और ये एक वैश्विक समस्या है। You know, a man who is supposed to earn money for the family, if he gives more time to the family, he is absent from the work. आज जिस व्यक्ति को पूरे परिवार के लिए कमाना होता है, वो अगर कमाने नहीं जाएगा तो समय कैसे देगा? And if he is at the work, he is absent at the family. अगर वो कमाने गया हुआ है तो परिवार को समय नहीं If he is देगा। present with the family, he is absent at the work. अगर वो परिवार के साथ है तो वो काम पे नहीं रहता। And it's hard because he is limited. और ये थोड़ा मुश्किल है, पर वो सीमित है। And so as family, we must understand and cooperate. और एक परिवार के तौर पे हमें समझना चाहिए और And उसका together साथ we देना must चाहिए। understand that the greatest role that daddy has is to give a better life to children. और हमें समझना चाहिए कि पिता का जो जरूरी काम ये है कि वो परिवार के लिए एक अच्छा जीवन And दे सके। everything that mom and dad does is to make the life of children better than theirs. और माता पिता जो करते हैं वो इसलिए वो उनका उद्देश्य बच्चों का जीवन बेहतर करना है। But children don't realize at times पर बच्चे कई बार इस बात को नहीं समझते। that what is normal to them is actually miracle for their parents. जो उनके लिए सामान्य है वो तो उनके माँ बाप के लिए चमत्कार से कम नहीं। Why? Because God does impossible for their parents, but for children it is very normal. क्योंकि जो उनके माँ बाप के लिए वो चमत्कार है वो बहुत असंभव सी चीज थी जो अब बच्चों के लिए सामान्य होगी। Many nights of prayers and hardship produces things that children get it free. बहुत प्रार्थनाएं, रात रात भर की प्रार्थनाएं और बहुत समस्याओं से जूझ कर माँ बाप वो चीजें बच्चों के लिए So लाते every हैं। children value your parents. जो इसलिए बच्चों अपने माँ बाप को वैल्यू करें, Submit to the authority of your parents. उस माँ बाप के अधिकार के सामने समर्पित हो, There is a blessing in that. उसमें एक आशीष है। Well, we are studying a subject of authority all throughout the जब scripture. हम लगातार अधिकार के विषय में सीख रहे हैं, We are learning what authority is in the name of Jesus हमने Christ. सीखा कि यीशु के नाम में अधिकार है। We are learning how spiritual, there are laws which are spiritual with dominant natural हमने laws. देखा कि जिस तरह जो व्यवहारिक सिद्धांत है उस पे आत्मिक सिद्धांत सिद्ध होता है। Few weeks ago, we started studying the power in the name of Jesus. हमने पढ़ा कैसे यीशु के नाम में सामर्थ है, How in the name of Jesus miracles explode. कैसे यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं, We have seen how deliverances happen. कैसे छुटकारा होता है यीशु के नाम When में। Peter saw a lame from birth, he said, "Silver and gold I don't have, what I have I give you. In the name of Jesus, rise up and जब walk." पतरस ने एक लंगड़े को देखा जो जन्म से लंगड़ा था, उसको कहा ये सोना और चांदी मेरे पास है नहीं, पर जो है वो देता हूँ, यीशु के नाम पे उठ और चल फिर। When Saul became blind at the road of Damascus, जब दमिश्क के रास्ते में शाऊल की आंखें बंद हो गई, वो अंधा there हो was a गया। disciple named Ananias there. एक हनन्या नाम का एक चेला था, And that Ananias was sent by God to Paul, और to Saul. वो हनन्या परमेश्वर के द्वारा पौलुस के शाऊल के पास भेजा गया, And so he comes to Saul और वो शाऊल के पास and he आता says, है। "Brother Saul, Jesus who met you has sent me, उसने कहा कि वो यीशु जो तुमको मिला था उसने मुझे भेजा है that in his name कि उसके नाम I में might open your eyes." मैं तुम्हारी आंखें खोल And he सकूं। prays for him and his eyes are open. और वचन कहता है जो उसने प्रार्थना की उसकी आंखें And खुल he's गई filled with Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भर गया। There is power in Jesus in his name. यीशु के नाम में सामर्थ है। Later on you see that the Peter was in a city आगे आप देखते हैं जब पतरस एक शहर में था and there was a man lame. और एक वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति He था, was from 8 years bedridden. वो बहुत 8 साल से वो बिस्तर पे And था। when Peter came in over और there, जब पतरस वहां आया, his name is Ananias. उसका नाम अनन्यास है। He said, "Ananias, Lord Jesus heals you. उसे कहता है यीशु तुझे चंगा करता है In the name of Jesus, rise up, make up your और bed." यीशु के नाम से उठ और अपना बिस्तर And उठा the ले। Bible declares that he quickly got up and made his bed. और उसने उठाया, वो उठा और अपना बिस्तर उठा के ले गया। All throughout the gospel we find Jesus healing people. पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ने लोगों को चंगा And किया in the Acts of Apostle until Revelation, name of Jesus healing. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य का यीशु का नाम है जो चंगा करता है। Everything that Jesus was doing in Matthew, Mark, Luke and John, जो कुछ यीशु मसीह मत्ती, मरकुस, यूहन्ना और लूका में कर रहे थे, from Acts till now, his name is doing. अब वही काम
प्रेरितों के काम से, प्रेरितों के कार्य से अब हम उनका नाम करता है। We are not a religious हम एक organization. कोई धार्मिक संस्था नहीं है, We are a body, हम एक शरीर a है, body of believers हम एक शरीर है who जो बहुत believe in the विश्वासियों का name है, of Jesus. जो यीशु के नाम पे भरोसा And करते because हैं। of our submission to the name of और Jesus, चूंकि हम यीशु के नाम को सबमिट करते we हैं, walk in the authority that Jesus हम उसके was. अधिकार में चलते हैं जो उसके नाम में And है। it doesn't matter what family you belong इस to. बात से फर्क नहीं पड़ता आप किस परिवार के It हैं, doesn't matter what culture you इस belong बात से फर्क नहीं to. पड़ता आपकी क्या सभ्यता It है, does not matter what ethnic group you आप belong किस to. एथनिक ग्रुप से आते हैं इससे फर्क It नहीं also पड़ता, doesn't matter what nationality you इस बात belong से फर्क to. नहीं पड़ता आप किस देश के हैं। The day you surrender under the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम पे समर्पित करते हैं अपने आप को, oh, there is a glorious future for एक you. बहुत महिमान्वित भविष्य Why? आपके लिए Because there होता is है, supernatural power in the name of क्योंकि Jesus. अलौकिक चीजें आपके साथ हो जाती We हैं। have seen in Philippians chapter 2, फिलिपियों के दूसरे अध्याय में हमने देखा, Bible says God highly exalted Jesus and gave him a name above every other name. परमेश्वर ने यीशु को महिमान्वित किया और उसका नाम सब चीजों के ऊपर रखा है, Above every other name. सब नामों से श्रेष्ठ उसका नाम है, High above every other हर name. चीज से ऊपर उसका नाम In है। heaven, on earth, underneath the earth. जितनी बातें स्वर्ग की है, पृथ्वी की और नीचे की One है, सब name. में उनमें एक नाम Higher than any other name. सब बातों से श्रेष्ठ है, Exalted than any other name. सबसे ऊंचा उठाया गया है, That's the name of वो यीशु Jesus. का नाम है। Believers, you need to know we carry the name of Jesus. विश्वासियों, आपको जानना अनिवार्य है कि आप यीशु का नाम लेके And चलते when हैं। you carry the name of Jesus, जहाँ आप यीशु का नाम लेके चलते it is हैं, impossible to stay beneath. असंभव है कि आप नीचे रहें, It is impossible to stay defeated. आप असंभव है कि आप हारे हुए हो। That name, वो नाम, there is salvation. उसमें उद्धार है, There is deliverance. उसमें छुटकारा है, There is power. उसमें सामर्थ There है, is authority. उसमें अधिकार है। Heavens bow down to that name. स्वर्ग उस नाम के सामने झुकता है, Demons shudder before that name. Demons shudder जो before that name. दुष्ट आत्मा से कांपते हैं उस नाम से। Oh, the name of Jesus is high and यीशु exalted. का नाम सबसे ऊपर है। This morning, आज की सुबह if there are issues in your life, आपके जीवन में अगर कोई समस्या oh, है, address those issues in the name उन of सबको Jesus. यीशु के नाम से एड्रेस When कीजिए। you address those issues in the name जब of आप यीशु के Jesus, नाम से उनसे एड्रेस oh, you करते will हैं, see victories. आप जय को देखेंगे। When David faced Goliath, जब दाऊद ने गोलायत को देखा, he said, I come in the name of the Lord of hosts. मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, उसने ऐसा He कहा। came in the name of Jesus. वो यीशु के नाम से गया And things changed. और चीजें बदल He गई। was able to defeat Goliath. वो गोलायत को हराने पाया। Address your opponent in the name of Jesus. अपने शत्रु को यीशु के नाम से एड्रेस Address कीजिए। your worries in the name of अपनी Jesus. चिंताओं को यीशु के नाम से Address your fears in the name of अपने डर Jesus. को यीशु के नाम से एड्रेस Address कीजिए। your infirmity in the name of अपनी कमियों को Jesus. यीशु के नाम से Oh, एड्रेस under कीजिए। the heaven, on the earth, there is only one name. स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, In that name, men shall be saved. उस नाम में मनुष्य उद्धार The पाएगा। Bible declares the name of the Lord is a strong tower, righteous run into it. वचन and कहता they है are कि saved. परमेश्वर का नाम एक ऊंचा गढ़ है, धर्मी उसमें शरण पाते We हैं, run in that name वो and we are दौड़ कर saved. उसमें शरण पाते There हैं, is protection in the उसमें name. एक प्रोटेक्शन है। Call on that name उस and be नाम को saved. पुकारिए। Bible says all those who call on that name shall be saved. वो वचन कहता है जितने उस नाम को पुकारेंगे वो बचाए There जाएंगे। is power in that name. उस नाम में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। That name has been given to you. और वो नाम आपको दिया गया है। Second thing that dominates the natural laws दूसरी चीज जो व्यवहारिक संसार को डोमिनेट करती है, is the fruit and the gifts of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के Oh, वरदान when हैं। it is given to body, जब वो शरीर को ये दिए जाते हैं, and when the church operates in the fruit and the Holy and the gifts of Holy Spirit, और जब कलीसिया आत्मा के फलों में और उसके वरदानों में चलती है, the church becomes unstoppable. फिर कलीसिया को रोकना असंभव हो जाता है Gates of hell cannot prevail और against it. अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। Oh, church becomes the mighty agency of God on the और earth. वो कलीसिया परमेश्वर के हाथ की एक माइटी एजेंसी बनती The है। invisible God is made visible through the church जो अदृश्य परमेश्वर है वो कलीसिया के द्वारा दृश्य हो by the जाता है, power of the fruit and the gift of Holy Spirit. जो आत्मा के फल और उसके वरदानों के द्वारा ऐसा होता है। Not just carrying the name of Christ, ना सिर्फ यीशु का नाम, but now operating in the gift and the fruit of Jesus और फिर वो Christ. यीशु का जो फल और उसके जो वरदान है उसमें कलीसिया Now चलती है। listen carefully. ध्यान से सुनिए, When you are surrendered to the name of Christ, जब आप यीशु के नाम के सामने समर्पित होते हैं, you come and address a situation in the name of Christ, things change. आप आकर एक समस्या को यीशु के नाम से एड्रेस करते हैं और चीजें बदलती हैं। You have the name to use आपके पास एक नाम है इस्तेमाल करने as के a लिए, weapon एक हथियार के तौर पर against the tools of enemy. शत्रु की अलग अलग योजनाओं के अगेंस्ट। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, Now name of Christ is a weapon, यीशु का नाम एक हथियार है, but when Holy Spirit gets inside of you, पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, when you are full of the fruit and the gift of Holy जब Spirit, आप पवित्र आत्मा के फलों से और वरदानों से भर जाते हैं, you become the weapon.
आप हथियार बन जाते हैं, You become the weapon. आप हथियार बन जाते हैं। If the name of Christ is a dynamite अगर यीशु का नाम एक डायनामाइट है that breaks down every stronghold, जो सारे गढ़ों को ढा देता है, when a man is surrendered to Holy Spirit जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित and होता is है filled with Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से भर जाता है, things change. चीजें बदलती है, He becomes the dynamite. वो भी डायनामाइट बनता है। Now devil is not just scared of the name of Christ. अब वो शत्रु यीशु के नाम से ही नहीं डरता, Now he is scared of you वो आपसे भी डरता है, because you have the Spirit of God in you. क्योंकि आप में परमेश्वर की आत्मा है। Now today I want to talk to you about this. आज मैं इस विषय पे आपसे बात करूंगा, Authority in the fruit and the gifts of Holy वो Spirit. अधिकार जो आत्मा के फलों में और उसके वरदानों में है। And then coming weeks, और आने वाले सप्ताह I'm going में to teach you about मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा authority in faith and consecrated lifestyle जो अधिकार एक विश्वास में और एक अलग किए हुए जीवन में है, and obedience in Christ. और जो आज्ञाकारिता है उसमें क्या अधिकार I'm है। going to teach you authority in the anointing. मैं अभिषेक में जो अधिकार है उसकी बात I'm going करूंगा, to teach you authority in the promises God give you. जो वायदे परमेश्वर के उनमें क्या अधिकार है Oh, it becomes more glorious. और महिमान्वित हो जाएगा। But today I want to tell you, पर आज जो बताना चाहता हूं, God not only comes with us, परमेश्वर ना सिर्फ हमारे साथ आते हैं, but God comes inside of परमेश्वर us. हमारे अंदर भी आते हैं। In John chapter 14, Jesus said, यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु ने कहा, Spirit of truth that is with you shall be in you. जो सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अंदर होगा। When Spirit of truth that is in you, जब वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, the devil cannot distinguish you. फिर शैतान तुमको अलग नहीं कर पाएगा। He can only see Christ in you. उसको सिर्फ यीशु दिखाई देगा, He doesn't see you वो then. आपको नहीं देख पाएगा, He sees Christ in you. उसको यीशु दिखाई देगा। And what begins to happen is, और फिर जो होने लगेगा, because of your presence, circumstances change. आपके उपस्थिति से चीजें बदल जाएंगी। Your being there, you dominate place. आपका वहां होना आपको डोमिनेशन देगा। Just because you arrive, Jesus arrived. आप पहुंचेंगे तो ऐसा होगा मानो यीशु आ गया। Why? क्यों? Because you become the living ark of covenant. क्योंकि आप फिर वाचा का संदूक बन जाएंगे जो जीवित है। Whenever the ark of covenant came into the battlefield, जब भी वो वाचा का संदूक युद्ध के रणभूमि में आया, the enemies flee शत्रुओं को भागना पड़ा, because they knew God of Israel came in. क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इजराइल का परमेश्वर आया है। Whenever ark of covenant came, जहां जहां वाचा का संदूक आया, enemies flew. शत्रुओं को भागना My पड़ा। friend, I want you to फिर understand. दोस्तों मैं चाहता हूं इस बात को जानो। Nowadays, we don't carry the ark of covenant. आज की तारीख में हम वो वाचा का संदूक लेके नहीं चलते। God moved the ark of covenant and made you and I the temple of Holy Spirit. परमेश्वर ने वो वाचा का संदूक हटा दिया और आपको और मुझको अपना मंदिर बनाया। We become the carrier of the presence of God. अब हम उसकी उपस्थिति को लेके चलते हैं। How will God go in hospital? कैसे परमेश्वर हॉस्पिटल में जाएगा? No longer from heaven. वो स्वर्ग से नहीं आता। But when you and I go into hospital, the Spirit of the living God जब आप और goes. मैं हॉस्पिटल जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा वहां उपस्थित होगा, Why? Because He is in you. क्योंकि वो हम में है। And when He is in और you, जब वो आप में है, listen, He doesn't change. वो नहीं बदलता, You change. आप बदलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He is yesterday, today, and forever the same. वो कल आज युगानुग एक सा है। So when the Spirit of the Lord comes inside of you, जब no परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, longer you live, but Christ lives in अब you. आप नहीं जीते पर यीशु आप में होकर And जीता है। then the authority of Jesus operates through you. फिर यीशु का अधिकार आपके द्वारा कार्यान्वित होता है। Listen, how many of you know आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? Jesus' authority is not subjected to his throne. यीशु का जो अधिकार है वो उसके थ्रोन से सब्जेक्टिव नहीं है। Now think about it. सोचिए मेरे साथ, If the prime minister, like for example, if I take an example, suppose today our Narendra Modi is our prime minister now. जैसे उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, Now suppose in next election if he is not the prime minister और अगले साल अगले इलेक्शन में अगर ऐसा हो वो ना रहे, and someone else becomes कोई prime और बन minister, जाए, do you think he will have all the privileges that he has now? तो क्या उनके पास जितने भी अधिकार आज हैं उनको बाद में मिलेंगे? Why? क्यों? Because he is no longer the ruling president or क्योंकि prime अब minister. वो प्रधानमंत्री नहीं है। So what really happens? तो क्या होता है? Here is a throne. ये एक सिंहासन है, This is a throne of a king. वो एक राजा का सिंहासन है। The man who is installed on this throne जो इस पर बैठा है rules. वही शासन करता है। This is what happens in the world. ये संसार में होता है, But in the kingdom of God, पर परमेश्वर के राज्य में
Throne has nothing to do with the authority. जो सिंहासन है उसका अधिकार से कोई लेना देना नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं। Jesus was powerful on the throne of heaven, जो यीशु है वो सिंहासन जो स्वर्ग में वहां था तब भी वो शक्तिशाली था, and he was powerful in the manger. वो उस मेंजर में भी शक्तिशाली था। He was powerful in the Garden of Gethsemane. वो गत्समनी के बाग में भी उतना ही सामर्थ्य था, He was powerful on the Mount of Transfiguration. वो उस रूपांतरण के पहाड़ में भी उतना ही सामर्थ्य The था। authority of Jesus is not subjected to location. जो यीशु का अधिकार है उसका उस स्थान से किसी स्थान से कोई लेना देना नहीं। There is no geography कोई ऐसा साम्राज्य, कोई ऐसा that स्थान doesn't नहीं bow to his जो उसके authority. अधिकार के सामने नहीं Hey झुकता। church, कलीसिया सुनो, realize who do you belong to. जानिए आप किसके हैं। His spirit is without any limits, उसकी आत्मा सीमित नहीं and है he comes in us to और वो stay. हम में आता है रुकने And के when लिए। he comes, और जब वो आता है you operate in the authority the way he operates. आप भी उसी अधिकार में चलते हैं जो उसका है। Whatever Jesus did, जो कुछ यीशु ने किया his disciples began to do. उसके चेले करने लगे Shadow of Peter was healing people. और पतरस की छाया से लोग चंगे हो Why रहे थे। were shadow of Peter healing people? क्यों पतरस की छाया से लोग चंगे हो रहे थे? Because the great I am was inside. क्योंकि वो जो बड़ा मैं है वो पतरस के The अंदर था। shadow was no longer Peter's, it was the shadow of the one who stays in him. अब वो छाया पतरस की नहीं थी, उसकी थी जो उसके अंदर है। My friend, I want you to understand, दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात को समझे, Christ in you यीशु जो आप में है, is मसीह the जो आप में है, dominating factor. वो डोमिनेटिंग है, He is the one. वो है, He is the one वो ही है, एक है that rules the universe. जो शासन करता है पूरे साम्राज्य में, पूरे He is the ब्रह्मांड। one वही है whom God made the Lord of all. जिसको परमेश्वर ने सबका प्रभु बनाया The है। Bible says in Acts chapter 4, प्रेरितों के काम के 4 अध्याय में लिखा है, this Jesus whom you crucified, वो यीशु जिसको तुमने क्रूस पे लटकाया, God made him Lord of all. परमेश्वर ने उसको सबका प्रभु बनाया है। God made him Lord of all. परमेश्वर ने उसका सब बातों का प्रभु You बनाया है। are not an ordinary person. आप एक साधारण मनुष्य नहीं, Being Christian is जो मसीह होना है becoming Christ. यीशु बनना है। And how do we become that? और आप ये कैसे बनते हैं? By fruit and the gift of Holy Spirit. जब आपके अंदर आत्मा के फल और आत्मा के वरदान हैं। What is the fruit of Holy Spirit? आत्मा के फल क्या हैं? We know in the scripture. हमने स्क्रिप्चर देखा है, It's love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. All that 9 expressions of the fruit of Holy Spirit we जो know. हमने देखा लिखा है कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। In one word, if I will say, अगर एक शब्द में कहूं, the fruit of Spirit is character of Jesus Christ. जो यीशु का स्वभाव है वो आत्मा का फल है। Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की तरफ मुड़िए और कहिए, the fruit of Holy Spirit आत्मा के फल is the character of Jesus Christ. यीशु का स्वभाव है। Fruit of Holy Spirit is जो आत्मा के फल है character of Jesus Christ. यीशु का स्वभाव है। What is it? क्या है? What is it? Hello, what is it? And who is Jesus? और यीशु कौन है? God and Lord of all. वो सबका परमेश्वर और सबका प्रभु है। Who is Jesus? कौन है? यीशु God of all. सबका परमेश्वर है। I want you to know, मैं चाहता हूँ इस बात को जाने, fruit of Holy Spirit is character of God. जो आत्मा के फल वो परमेश्वर का स्वभाव है। Hello? Amen. Do you know something about the character of God? आप परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक बात जानते हैं? Open your Bibles with me to Galatians chapter 5 गलातियों उसका 5वां अध्याय, and verse 22 and 23. उसका 22 और 23वां पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। Now listen carefully. देखिए क्या लिखा है। We all focus on the 9 expressions of the character of Father. हम जो पिता के 9 स्वभाव के जो 9 एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान देते हैं, But the next line says, पर जो अगला पद कहता है there is nothing against such. उसमें लिखा है कि ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। What does it say? क्या लिखा है देखिए, There is, against such there is no law. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। Is it written there in your Bible? क्या आपके बाइबल में भी ऐसा Is लिखा it है? written? देखिए Hey, listen. What is Paul saying to Church of Galatians? पौल क्या लिख रहा है गलाती की कलीसिया को? Enemy has nothing that he can come against with.
शत्रु के पास ऐसा कुछ नहीं जिसको लेकर वो इन चीजों के सामने आ सके, against the character of God. जो परमेश्वर का चरित्र है उसके सामने। Listen, देखिए, character of God has no opposition. परमेश्वर के चरित्र का कोई विरोधी नहीं है। Please know, देखिए इस बात को, nothing can stand against the character of God. कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के स्वभाव के, उसके चरित्र के सामने खड़ा हो सके। Nothing can stand against the character of God. कुछ भी परमेश्वर के स्वभाव के सामने खड़ा नहीं हो सकता। Hello, church. You know why nothing can stand against us? पता है क्यों कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता? Because we have a God whose character is stronger than everything else. क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जिसका स्वभाव सब चीजों से बड़ा है, And nothing comes against his character. और कुछ भी उसके सामने नहीं खड़ा हो पाता। Devil cannot come against his character. शैतान उसके स्वभाव के सामने खड़ा नहीं हो सकता। Devil can raise a dead body. शैतान एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, Devil can perform miracles. वो चमत्कार कर सकता है, But devil cannot walk in love. पर वो प्रेम में नहीं चल सकता। Amen. Do you know what makes devil devil? डेविल को डेविल क्या बनाता है पता है आपको? His character. उसका चरित्र बनाता है। What makes God God? पर गॉड को गॉड क्या बनाता है? His character. उसका चरित्र बनाता Who है। has superior character? किसका चरित्र बढ़कर है? Loudly. 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 That's why Bible says love never fails. इसलिए वचन में क्या है? प्रेम कभी हारता नहीं। Why does love never fail? क्यों प्रेम कभी हारता नहीं? It is the character of God. क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव है। My friend, I want you to know this. मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ इस बात If को your जानना। relationships are crumbling, अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं, introduce the love of Christ in it. उसमें यीशु का प्रेम लेकर आइए, Watch everything come back to its shape. सब कुछ वापस ठीक हो If जाएगा। your business is failing, अगर आपका व्यवसाय खराब हो रहा put the है, love of Christ in it. उसमें परमेश्वर का, यीशु का प्रेम Love your लाइए। clients. अपने क्लाइंट्स को प्यार Love your कीजिए, employees. अपने एम्प्लॉयज को प्यार Love कीजिए, your employers. अपने एम्प्लॉयर को प्यार Love कीजिए, your colleagues. अपने कलीग्स को प्यार Love कीजिए, your customers. अपने कस्टमर्स को प्यार Love कीजिए, your product. अपने प्रोडक्ट को प्यार कीजिए, Love to serve. एक सर्विंग की भावना को प्यार कीजिए। Watch, your business will rise up. आपका काम फिर ठीक हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, AI can do everything, but AI cannot love. एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर की तरफ प्रेम नहीं कर सकता। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Church, you don't have to be afraid of the scientific discoveries in this generation. कलीसिया जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। All things will work for good for those who love the Lord. सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी उनके लिए जो परमेश्वर से So I प्रेम want करते to challenge our children. हैं। मैं अपने बच्चों को इस बात का चैलेंज करता हूँ, Learn AI एआई सीखिए and be the champion, be the boss of that AI. और उस एआई का चैंपियन, उसका बॉस बनिए। Amen. Everything is supposed to serve you. सब कुछ आपकी सेवा के लिए है, That's the will of our Father. ये पिता की इच्छा है, Everything is supposed to serve you. सब कुछ आपके लिए है। I was watching a man of God's video मैं एक खुदा के खादिम का वीडियो देख रहा and he था gave this prophecy. और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। He is an apostle. वो एक प्रेरित है, Amazing work God does through him. अद्भुत काम परमेश्वर उनके द्वारा करते हैं। The Lord showed him that coming 7 years, God is preparing church to handle wealth as never before. परमेश्वर आने वाले 7 सालों में कलीसिया को तैयार कर रहे हैं ताकि वो वेल्थ को हैंडल कर सके, Because a supernatural transfer of wealth from the hands of wicked is going to come into the hands of righteous. क्योंकि दुष्टों के हाथ से परमेश्वर संपत्ति लाकर धर्मियों को देने पर है। Bible has prophesied these things. परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है। But listen, सुनिए इस बात in our generation we are going to witness these things. हम अपने समय में इस बात को होता हुआ देखेंगे। How will it happen? ये होगा When you grow strong in the character of Christ. जब आप यीशु के स्वभाव में बढ़ेंगे, ये होगा। That's righteous living. ये धर्मी जीवन जीना है। So aspire to live in the nature of God. इच्छा रखिए यीशु के जीवन में, यीशु का स्वभाव जीने Bible की। says in 1 Peter, पहले पत्रस में लिखा है, through exceeding great promises, जो इतने सारे वायदे हमारे लिए हैं, God has given us this wonderful privilege परमेश्वर ने ये एक प्रिविलेज दिया है, that we become the partakers of divine nature of God. हम परमेश्वर के उस स्वभाव का हिस्सा बन सके। We become the partakers of divine nature of जो God. परमेश्वर का जो स्वर्गीय स्वभाव है उसका हिस्सा बन सके। Meaning what really happens, इसका मतलब ये है my sinful nature gets dissolved in the nature of God. कि जो मेरा एक पापमय
में स्वभाव है वो परमेश्वर के स्वर्गीय स्वभाव में मिल जाता And है। when God's nature dominates my nature, और जब परमेश्वर स्वभाव मेरे स्वभाव पे You know, डोमिनेट करता है, just to help you visualize this, आपको विजुलाइज कराने के लिए, how many of you know the story of Exodus in the Bible? आप में से कितनों को निर्गमन की कहानी पता है? Do you know what was the first miracle that happened in Egypt by Moses? जो पहला चमत्कार मूसा के द्वारा इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में हुआ था, Do you remember? आपको याद है? He threw this rod before Pharaoh उसने अपना जो उसकी लाठी थी वो उसने फिरौन के सामने and it फेंकी became a serpent. और वो सांप बन गया। Now something else happened. और फिर कुछ हुआ, The magicians also threw their जो rods मिस्र के जादूगर थे उन्होंने भी अपनी लाठी and they फेंकी all became serpent. और वो भी सांप बन गए। Now think about it. अब मेरे साथ सोचिए, What's so big deal? इसमें क्या बड़ी बात हुई? Moses, you did, they also did. मूसा जो तूने किया वो बाकियों ने भी So किया। what's the big deal about it? इसमें कोई बहुत सी बड़ी बात On होगी। the outlook, everything looks same. बाहर से सब कुछ एक समान दिखता है, But only one difference. पर एक अलग बात है The serpent of Moses ate up every other कि serpent. जो मूसा की लाठी सांप बनी थी उसने बाकी सब सांपों को खा लिया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात को। When character of Christ comes in you, जब यीशु का स्वभाव आप में आता है, when fruit of Holy Spirit comes in you, जब आत्मा का फल आप में आता है, listen, सुनिए, there will be a season एक सीजन होगा, एक when you मौसम will होगा, feel like a dual personality inside आपको you. लगेगा कि आपके अंदर दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। And sometimes you are very bad and sometimes you are very good. कभी आप बहुत अच्छे और कभी आप बहुत बुरे महसूस And करेंगे। sometimes your thoughts are very good and sometimes they are very ugly. कई बार आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, कई बार बहुत बुरे होंगे। Sometimes your talks are very bad and sometimes they are amazing. कभी आप बहुत अच्छी बात करेंगे, कभी आप बहुत घृणित Your बात करेंगे। feelings and your thoughts and your character just like it shifts. आपका बोलना, आपका सोचना सब कुछ कई बार शिफ्ट होता You रहेगा। react in the way you should not have and then you regret why you reacted आप that कई way. बार इस तरीके से बिहेव करेंगे जिसके लिए बाद में आप बहुत पछताएंगे। Now see, देखिए, in some time, ऐसे समय में the character of Christ in you जो यीशु का स्वभाव आपके अंदर है, will start eating anger in you, आपके अंदर के जो क्रोध है उसको खाने लगेगा, will start eating jealousy in you, आपके अंदर की जलन को खाने लगेगा, will start eating bitterness in you, आपके अंदर की कड़वाहट को खाने will लगेगा, start eating lie in you, आपके अंदर के झूठ को खाने लगेगा। will start eating like the serpent of Moses, one after another ate up every other serpent. जैसे मूसा के सांप ने बाकी सारे सांपों को एक एक करके खा लिया, The character of Christ in you will eat up every other character that is not from him. यीशु के चरित्र का जो सांप है वो सारी बातों को खा लेगा एक एक करके जो उसके हिसाब से सही नहीं है। Amen. Amen. That is the authority of the power of God. ये परमेश्वर के नाम का अधिकार There is है। power in his character. उसके स्वभाव में एक अथॉरिटी There है, is power in his character. उसके स्वभाव में एक अधिकार है। Temptations are no match to his character. जो परीक्षाएं हैं वो उसके स्वभाव के सामने खड़ी नहीं रह सकती। Listen carefully. ध्यान से सुनिए इस बात। When devil tempted Jesus, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, devil thought that I can cheat him the way I cheated Adam. उसको लगा कि जिस तरह उसने आदम को धोखा दिया वो यीशु को भी धोखा दे सकता So he also showed him everything. है। उसने उसको वो सब कुछ दिखाया, Jesus saw everything, यीशु ने सब कुछ देखा भी, but his character was stronger than what he sees. पर उसका चरित्र उसके देखने से ज्यादा बड़ा था। His character was stronger than his immediate needs. उसकी जरूरत से ज्यादा बड़ा उसका स्वभाव था। You know, devil said, "You are hungry. उसने कहा तुझे, शैतान ने कहा तू भूखा है, It's written for you. तेरे लिए लिखा है, Speak to the stone; they will become bread." पत्थर को बोलो तेरे लिए रोटी बन जाएंगे। But his character was stronger than enemy. पर उसका स्वभाव शत्रु से ज्यादा His सामर्थ्य था। character was stronger than his need. उसकी जरूरतों से ज्यादा स्ट्रांग उसका स्वभाव था। So what he said? उसने क्या कहा? He said, "Listen, man will live by every word that is spoken out of the mouth of उसने God." ये कहा कि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा कही हुई हर बात से, उसके वचन से भी जीवित रहेगा। Wow! Amen. Isn't it amazing क्या ये अद्भुत बात that है? when you walk in the character of Christ, you can defeat devil? जब आप यीशु के स्वभाव में चलते हैं आप शत्रु को हरा सकते हैं। That day on that mount, how did Jesus defeat devil? उस दिन यीशु ने शैतान को कैसे हराया? The character of God, the Father in Jesus, defeated devil. जो परमेश्वर का स्वभाव यीशु के अंदर था उसने शत्रु को हराया। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Character is God's character in you. जो स्वभाव है परमेश्वर का स्वभाव जो आप में है, That is what we call fruit of Holy Spirit. इसे हम आत्मा का फल कहते हैं। And that's why every fruit when you go and meditate upon, इसलिए जितने भी फल हैं अगर आप उनको एक एक करके ध्यान से देखें, you'll find love never fails. आपको लगेगा प्रेम कभी हारता नहीं। You will find the joy of the Lord is my strength. उसे आप देखेंगे जो परमेश्वर का आनंद है वो मेरी शक्ति है, मेरा You सामर्थ्य will है। find God of peace will soon crush Satan उसमें underneath your देखेंगे कि feet. परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचवा You देगा। know, every of the nature given there defeats devil. जितना
कुछ परमेश्वर के स्वभाव में है वो शैतान को हराता है। So in the moments when you are troubled, उन क्षणों में जब आप परेशान होते हैं, remind yourself that you have the fruit of Holy Spirit. स्मरण कराइए अपने आप को कि आपके पास आत्मा के फल They हैं। were stoning Stephen, वो स्तिफनुस को पत्थर मार रहे and the थे Bible says he was full of Holy Spirit. और वचन कहता है वो आत्मा से भर गया। They were accusing Stephen, वो उस पे दोष लगा रहे थे and the Bible says he was seeing Jesus standing in heaven. और वचन कहता है कि उसको परमेश्वर यीशु दिखाई दे रहा था The स्वर्ग में खड़ा fruit हुआ। of Holy Spirit is amazing. आत्मा के फल अद्भुत है। What enemy is doing, you can't see it. What Christ is doing, you see it. आप जो शत्रु कर रहा है आपको वो नहीं दिखता, यीशु जो कर रहा है आप उसे देखते And हैं। even when he's dying, और जब वो मर भी रहा था, he says, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. वो उसे कहने माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Wow, full of Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ What व्यक्ति। happens? क्या हुआ? You behave the way Christ behaves. आप जैसा यीशु बिहेव करता था आप वैसा I बिहेव pray करते that Upper Room Church will get this wave of Holy हैं। Spirit. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पवित्र आत्मा का झोंका है इस कलीसिया में That आए। we're going to walk in the authority of Christ by being in nature of Christ. हम यीशु के अधिकार में उसके स्वभाव में होकर चलने वाले हो सके। And as we abide in the nature of और Christ, जब हम उसके स्वभाव में बने रहे, we will dominate the spirit of हम the world. अधिकार में डोमिनेट करेंगे। We will dominate the areas of our influence. हम अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में डोमिनेट We करेंगे। will dominate our हम relationships. अपने संबंधों में डोमिनेट करेंगे। Wherever you go, जहां कहीं आप जाएं, a man will be revered because of his character. एक व्यक्ति उसको सम्मान पाता है अपने चरित्र की वजह My से। prayer is मेरी प्रार्थना है that we will learn to operate in the nature of Christ. हम सीखें यीशु के स्वभाव में जीना। Another very important thing to understand, दूसरी बात जो बहुत जरूरी है समझना, that is the gifts of Holy Spirit. वो आत्मा के वरदान है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। If the fruit of Holy Spirit is the character of God, जब जो आत्मा के फल वो परमेश्वर का स्वभाव है, then the gifts of Holy Spirit is the ability of God. फिर जो आत्मा के वरदान है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्षमता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। God did not just give you his character, परमेश्वर ने न सिर्फ आपको अपना स्वभाव दिया है, he also gave you his ability. उसने अपनी क्षमता भी आपको दी The है। gifts of Holy Spirit is the ability of Jesus Christ. आत्मा के जो वरदान वो यीशु की क्षमता है। That means इसका मतलब you can do everything that Christ can आप do. वो सब कुछ कर सकते हैं जो यीशु करता था। Everything that God can do, you can do. जो कुछ परमेश्वर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। Can you ever imagine क्या आपने कभी सोचा the Spirit of the living God that rose up Jesus from the grave वो परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को कब्र में से जिंदा किया is now staying in you? वो अब आप में रहता है। How can you be ordinary? कैसे आप साधारण हो सकते हैं? The same Spirit that anointed Jesus of Nazareth and he went about doing good and doing all kinds of miracles, और वो आत्मा जिसने यीशु को अभिषेक दिया और जिसकी वजह से वो जा जाकर चमत्कार करने लगे, that Spirit is in you. वो आत्मा आपके अंदर है। Hello? Amen. Don't tell me that the Spirit in the body of Christ was more powerful than the Spirit in your body. अब मत कर मुझे बताइए कि जो यीशु में आत्मा थी वो ज्यादा शक्तिशाली थी आपकी आत्मा जो आपके अंदर है। It's the same Spirit. वो वही आत्मा है, It's the same Spirit. वो वही आत्मा है। But you would say, Pastor, why the results are so different then? आप कहेंगे क्यों फिर जो परिणाम है वो अलग अलग है? Simple. इसका साधारण कारण है। Simple. साधारण कारण है। Jesus surrendered to the leadership of that Spirit. पर यीशु ने उस आत्मा की अगुवाई पे समर्पण किया। We don't surrender. हम नहीं करते Because God has given us free will, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक इच्छा दी है, अपनी इच्छा दी He है। doesn't break that free will. परमेश्वर उस इच्छा को तोड़ते नहीं है। God doesn't make us slave. परमेश्वर में दास नहीं बनाते। God has given us the freedom to choose. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है चुनाव करने And की। when we choose, और जब हम चुनाव करते when हैं we choose to become and say yes to the Lord, और जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर को हाँ कहते हैं, something amazing will happen. कुछ अद्भुत होता है। I want you to realize मैं चाहता हूँ इस बात को महसूस when you करें। and I choose to say yes to जब हम Jesus, यीशु को हाँ कहते हैं, we operate in the authority of Jesus. हम यीशु के अधिकार में ऑपरेट We करते हैं। walk in the character of हम Jesus. उसके स्वभाव में चलते हैं। And when you walk in the ability and character of जब Jesus, आप उसके स्वभाव उसके चरित्र में चलते हैं, devil cannot oppose you शत्रु आपका विरोधी नहीं हो because सकता। you're victorious. वो आप जीवन दिएगा। God can do great things through you. परमेश्वर बड़ी चीजें करेगा। So let's read few verses in the Bible. एक कुछ पद देखते हैं। When it comes to the gifts, जब गिफ्ट की बात है, I want you to see something. मैं कुछ चाहता हूं आप देखें। You know, read Acts chapter 13 verse 4 to 12. सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकिया को गए और वहां से जहाज पे चढ़कर कुफुस की चले। Now listen,
Verse number 4 says, चौथा पद कहता है they did not go on their own, Holy Spirit sent them. वो खुद से नहीं गए, पवित्र आत्मा ने उन्हें भेजा। This is Barnabas and Paul, ये बरनबास और पौलुस की बात हो and रही God है, is sending them. और परमेश्वर उन्हें भेज रहे Holy हैं। Spirit is leading them. परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई Holy करता Spirit है, is guiding them. परमेश्वर आत्मा उनका अगुवाई कर रहा And है, Holy Spirit sent them to a certain और geography. पवित्र आत्मा उन्हें एक क्षेत्र में भेजते So हैं। they went over there sailing वो on वहां the boat, गए, जहाज पे चढ़कर वहां गए, and see what happens. और फिर देखिए आगे लिखा है, और सेल्मिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया, और यूहन्ना उनका सेवक था। Keep reading. और उस सारे टापू में होते हुए पाफूस तक पहुंचे, वहां उन्हें बार यीशु नाम का यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। Now listen carefully. ध्यान से देखिए क्या है, They came to an island, वो एक जगह पहुंचे, एक टापू पे and पहुंचे, there they found a man who was a false prophet, एक व्यक्ति मिला जो झूठा भविष्यवक्ता है। and his name is Son of Jesus. उसका नाम यीशु का बेटा है। How funny. His name is Son of Jesus, उसका नाम है जिसका मतलब है यीशु का बेटा, and he is a false prophet. वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। Now see, this false prophet had made a reputation for himself. और इसने अपनी एक ख्याति प्राप्त की हुई है। What does Bible say? देखिए लिखा है, वो सिरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि वो उसके नाम का यही अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। Now listen carefully. ध्यान से देखिए, There was this governor who invited Paul and Barnabas to come and speak to him. देखिए वहां एक सूबेदार है जो चाहता है कि पौलुस और बरनबास आकर उससे बात करें, उसे Now सुसमाचार Paul सुनाएं। and Barnabas are spreading the gospel, preaching the gospel to this governor. ये गवर्नर को, जो पौलुस और बरनबास है, वो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। But this false prophet पर ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, is arguing and nullifying everything they are ये saying, इनसे बहस कर रहा है और रोक रहा है लोगों को विश्वास करने making से। it hard, confusing him to believe. लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि वो विश्वास ना कर सके। And so what is happening? फिर देखिए क्या हुआ, He is a false prophet. वो एक झूठा भविष्यवक्ता है, He is hindering people to believe in the gospel of वो Jesus लोगों को Christ. रोक रहा है यीशु पे विश्वास करने And से। this is what is और happening. ये हो रहा है वहां पर। Even now, आज भी anti-Christian organizations are doing the जो same मसीह thing. विरोधी लोग हैं वो ऐसा ही कर रहे They हैं। are hindering people from believing the वो gospel. लोगों को रोक रहे हैं सुसमाचार पे विश्वास They करने से। are distortion to the gospel. वो एक भटकाव है परमेश्वर के लोगों के लिए और सुसमाचार And what के लिए। happens here? और देखिए क्या हुआ, Verse number 9. 9वां पद कहता है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। Listen carefully. ध्यान से देखिए, Then Saul, who is also the Paul, शाऊल जिसका नाम पौलुस भी है, being full of Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, The Bible says being full of Holy Spirit. वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर Begin to stare at him. उसकी ओर देखने लगा। Listen carefully. देखिए, When a man who is full of Holy Spirit begins to stare, जब एक पुरुष जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है किसी को टकटकी लगाकर he देखता takes है, authority over the situation. वो उस बात पे उस समय अधिकार ले लेता है, He takes authority over everything वो else. हर चीज पे अधिकार ले लेता है। Guess what happens? देखिए क्या हुआ, See, the Bible says here उसमें एक लिखा है, उसने कहा, that he begins to stare at him. वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा। And then verse number 10. 10वां पद कहता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के भैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। See, Paul reveals his true identity. परमेश्वर ने, तब पौलुस ने उसकी जो सही पहचान है उसको रिवील कर He दिया। said, you have a name, son of Jesus, तेरा नाम बार यीशु है, मतलब जो यीशु का बेटा, but you are son of devil. पर तू शत्रु शैतान की संतान है। You have a appearance of a godly man. तेरा जो दिखावा है वो एक परमेश्वर के दास You का have a दिखावा है। reputation of a false prophet. तेरी ख्याति एक भविष्यवक्ता की है, You are a false पर prophet. तू एक झूठा भविष्यवक्ता है। He talks about him वो उसके बारे में बताने लगा and exposes him. और उसको प्रकट कर दिया। And see what happens और then. देखिए क्या हुआ, Verse number 11. 11वां पद कहता है, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और उस सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोले लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ने जो ये कुछ हुआ था देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। See what does Bible say here? देखिए क्या वचन में लिखा है, The moment Paul saw the deception, जैसे ही पौलुस ने उस भटकाव को देखा, he exposed it. उसे से प्रकट कर दिया। And what happened? और क्या हुआ,
the judgment of God came. परमेश्वर का न्याय आया। Listen, when you are full of the character and the gifts of Holy Spirit, जब आप परमेश्वर की आत्म स्वभाव से और उसकी आत्मा से भरे हैं, you can bring God's judgment into a situation. आप परमेश्वर का न्याय किसी परिस्थिति में ला सकते हैं। You can bring God's verdict in a situation. आप परमेश्वर का वर्डिक्ट कहीं पे भी ला सकते हैं। And he became blind. And this man became blind. और ये व्यक्ति अंधा हो गया। Same thing happens in Acts chapter 5 with Hananiah and Sapphira. यही हनन्याह और सफीरा के साथ वैद्यों के काम के 5वें अध्याय में What do we find? हम क्या देखते हैं? We find there is authority when you are full of Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, आपके पास अधिकार है। Not just to heal, सिर्फ चंगा, ना सिर्फ चंगा करने but का, to rule. पर शासन करने का To भी, rule. शासन करने का To भी, rule. शासन करने का You भी। can break off every deception of enemy. आप हर भटकाव को शत्रु के तोड़ सकते हैं। One more verse we will read and then we will close. एक पद और देखेंगे। Open your Bibles to 1 Corinthians chapter 12 verse number 4. पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 4था पद। Go on. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। Listen carefully. ध्यान से देखिए। He's talking about the gifts of Holy Spirit. यहाँ पर आत्मा के वरदानों की He बात says है। there are many kinds of gifts, अलग अलग किस्म के वरदान हैं, but only one Holy Spirit. पर एक पवित्र आत्मा है। Only one Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा है। Many different kinds of gifts. अलग अलग किस्म के प्रकार के And then वरदान he हैं। explains certain और gifts. फिर वो बताता है, Now listen, what are some of the gifts? देखिए क्या है। Let's read ahead. और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, तो दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। Do you see there are different expressions of the gift of Holy Spirit? यहाँ अलग अलग किस्म के वरदानों की बात हो रही है। जो Word of knowledge is given. बुद्धि की बातें हैं, Word of wisdom is given. बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें God हैं। gives the Spirit to different people. परमेश्वर अलग अलग देता है ये वरदान And then he लोगों को। says that by the same Spirit somebody is given wisdom, किसी को इसी के द्वारा ज्ञान की बातें दी and जाती the हैं। gift of faith is given. फिर विश्वास की बात दी जाती Not है, only that, gift of healing is और given. चंगा करने का भी वरदान दिया जाता And the है, gift of signs and wonders और फिर is given. सामर्थ के काम करने की भी शक्ति दी जाती है। How it is all this given? कैसे ये दिया जा रहा By है? the same Spirit. एक ही आत्मा के द्वारा। That's why इसलिए when we understand the fruit and the gifts of Holy Spirit, जब हम आत्मा के फल और वरदान समझते हैं, you can operate in wisdom of God. आप परमेश्वर की बुद्धि में चलते हैं, You can operate in knowledge of आप God. परमेश्वर के ज्ञान में चलते You हैं, can operate in power of आप God. उसकी सामर्थ्य में चलते You हैं, can operate in healing and signs and आप wonders of God. चंगाई में सामर्थ्य के काम करने में You चलते can do हैं। everything that God does. आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर करते Why? हैं। क्यों? Because it is His Spirit that is operating to क्योंकि you. वो उसकी आत्मा जो आपके द्वारा काम Now करती है। tell me one thing. मुझे एक बात बताइए, I have this phone. मेरे पास एक फोन है, You have another phone. आपके पास एक दूसरा फोन है। Don't tell me that Zoom will work differently in this and differently on your phone. फिर मुझे मत बताइए कि जो जूम है वो मेरे फोन पे अलग काम करेगा और आपके फोन पे अलग काम Don't करेगा। tell me that WhatsApp will work differently on your phone and differently on मुझे मत me. बताइए कि व्हाट्सएप मेरे फोन पे अलग काम करेगा और आपके फोन पे अलग काम If करेगा। our softwares work same on different phones, अगर हमारा सॉफ्टवेयर एक ही तरीके से काम करता है अलग अलग why? Because it is the software that doesn't change. क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं बदलता, Same way the Spirit of the Lord is the software and our body is the hardware. और हम इसी तरह परमेश्वर का आत्मा सॉफ्टवेयर और हमारा शरीर हार्डवेयर है। God who worked through Jesus Christ works in me and works through Samir. जो परमेश्वर यीशु के द्वारा काम करता था हमारे द्वारा काम करता है, वही समीर के द्वारा Same काम Spirit करेगा। works through Uncle Parvez. यही परवेश भैया के थ्रू काम Same करेगा, Spirit works through John. यही जॉन के थ्रू काम Same करेगा, Spirit works through every one of ये us. सभी के द्वारा काम करेगा। Bible says by the same Spirit, the expression of the Spirit is given to all. सभी लोग सभीयों को उसी आत्मा के द्वारा प्रभावशाली कार्य करवाने का सामर्थ्य दी जाती है। How do we arise to rule and dominate? हम कैसे शासन के लिए खड़े हों, अधिकार के लिए खड़े By हों? becoming one with the Spirit. इस आत्मा से एक होने के द्वारा। When we fellowship with Jesus, जब हम यीशु के साथ सहभागिता we रखते हैं, become one with the Spirit of हम God. परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाते हैं। And when you become one with the Spirit of God, जब आप परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाते हैं, everything that can happen through God happens through you. जो कुछ परमेश्वर के द्वारा हो सकता है वो आपके द्वारा भी होता है। You will say, oh, this is blasphemy. आप कहेंगे ये परमेश्वर की निंदा है, No, this is scripture. ये वचन में
में लिखा है, This is the Bible. ये बाइबल लिखा है, This is what the Bible says. ये वचन कहता है ऐसा। The Bible says our sufficiency and competency comes from Jesus Christ. हमारा कार्य, हमारी क्षमता पर यीशु के द्वारा आती है। It's so beautiful to see in the scripture ये कितना खूबसूरत है परमेश्वर के वचन में देखना। that God works in us and through us. परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करता है। He who fellowships with the Lord becomes one spirit with him. is जो the Bible. जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17वां पद, This is what Paul is writing to the church of पौलुस के Corinthians. कलीसिया को लिख रहा है। He who fellowships with the Lord becomes one spirit जो with प्रभु him. के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो He जाता है। becomes one spirit with him. वो इसके साथ एक आत्मा हो जाता है। That means he sees what God sees. वो देखता है जो परमेश्वर देखता He है, feels what God feels. वो महसूस करता है जो He परमेश्वर does करता what है, God does. वो करता है जो परमेश्वर करता है। That is the power unleashed when you receive the gift of Holy Spirit. ये सामर्थ छूट जाती है जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। I want you to realize, my friend, मैं चाहता हूँ इस बात को आप जानें, that the Spirit of the Lord wants this to happen to us. परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो। All throughout the Bible, पूरी बाइबल में when people receive the Spirit of God, जब लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को पाया, awesome things happen. अद्भुत चीजें हुई। Do you remember whenever the Spirit of God would come upon Samson, जब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पे आता था, he would do mighty things. वो बड़ी बड़ी चीजें When करता it था। would come on Samuel, जब वो शमूएल पे आया, he would prophesy. वो भविष्यवाणी करता था। Whenever the Spirit of the Lord would come upon anyone, जब किसी पे भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, they would do supernatural things. उन्होंने अलौकिक काम किए। Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me. यीशु ने कहा वो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, He has anointed me उसने मेरा अभिषेक किया to है preach the good news to the ताकि poor, मैं लोगों को सुसमाचार to सुनाऊं, open the blind ताकि eyes, मैं अंधों की to आंखें खोलूं, heal the sick, क्योंकि बीमारों को to चंगा deliver करूं, the captives. जो बंधुआई में उनको छुटकारा It's दूं। the Spirit of the living God when He comes in us. जो जीवते परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, It does things that is in the heart of Father. वो करती है, वो सारी चीजें करती है जो परमेश्वर के This हृदय में morning है। I want to encourage you, church. आज की सुबह मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ, Don't just use the name of Jesus. ना सिर्फ यीशु का नाम इस्तेमाल Be करें, filled with the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। Walk in the character and the ability of Christ. परमेश्वर के सामर्थ्य में और उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में चले। God is not just interested to be with you. परमेश्वर सिर्फ आपके साथ होने में इंटरेस्टेड नहीं है, He wants to be in you. वो आपके अंदर भी होने में इंटरेस्टेड When है। He is with you, your circumstances change. जब वो आपके साथ होता है, आपकी परिस्थितियां बदलती But हैं, when He comes in you, you change. पर जब वो आपके अंदर आता है, आप बदलते Your हैं। life from inside out is different. आपका जीवन अंदर से बदल जाता है। My prayer is मेरी प्रार्थना है that you would receive the gift of Holy Spirit. आप परमेश्वर की आत्मा को पाएंगे, उसकी गिफ्ट This को morning पाएंगे। we're going to pray अभी हम प्रार्थना that the करेंगे, Lord will fill the church with His Spirit. परमेश्वर अपनी कलीसिया को आत्मा से भर दे। How many of you want a fresh feeling of Holy Spirit? आप कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का आपको छुआ जाना महसूस How हो? many of you want that God fill me, Lord? परमेश्वर मुझे भर दे, कितने लोग चाहते हैं? If you really desire it, stand upon your place. अगर आप चाहते हैं तो अपनी जगह पे खड़े हो। God does not speak if He does not want to do it. परमेश्वर नहीं बोलता अगर वो करना नहीं चाहता तो। It is style of our Father ये हमारे पिता का तरीका है, that He will speak and He will do. वो कहेगा और करेगा। When Peter was speaking in the house of Cornelius, जब कुरनेलियस के घर पे पतरस बात कर the रहा था Holy Spirit came on Gentiles. और अन्य जातियों पे आत्मा उतर गया, And for the first time और पहली बार in the history of mankind, पूरे इतिहास में मानव जाति के Gentiles were filled with the Spirit अन्य of जाति God. लोग परमेश्वर की आत्मा से भर गए। That which was given to Jews in Acts 2 जो यहूदियों को दिया गया था पेटों के काम के दूसरे अध्याय में, was released for you and I in Acts 10. वो हमारे लिए 10वें अध्याय में दे दिया गया। Oh, Paul said, the last two verses of Acts chapter 2. जो पेटों के बुक ऑफ एक्ट जो चैप्टर 2 के आखिरी शब्द हैं, You know something beautiful there. वहां कुछ एक अद्भुत बात लिखी है। Peter is addressing to people पतरस लोगों से बात कर रहा है, where he is telling what you see is not the result of wine. वो कह रहे हैं कि जो कुछ तुम देख रहे हो ये दाखरस की वजह से नहीं है, It is because Joel's prophecy is coming to pass. क्योंकि वो कह रहा है कि जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो रही And है। then Peter said, और फिर पतरस कहता है this promise ये वायदा is for every one of you वो सबके लिए उसने ऐसा कहा है, and for your children और आपके संतानों के लिए है, and for everyone whom God will call on the planet Earth. और सबके लिए जिसको परमेश्वर इस पृथ्वी पे अपने लिए बुलाएगा। Hey, Amen. you are called in the name of Jesus. आप यीशु के नाम में बुलाए गए, You are separated in the name of Jesus. आप यीशु के नाम में अलग किए गए So हैं। expect that gift of Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के दान को अपने लिए मांगिए, उसको एक्सपेक्ट कीजिए। Ask and you will receive. मांगे तो मिलेगा। Ask Lord, Lord, fill me with your Holy Spirit. कहिए पवित्र आत्मा मुझे अपनी आत्मा से भर When दे। disciples were praying, that place was
shaken, and they all were filled with Holy जब Spirit. चेले प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह पवित्र आत्मा से भर गया, वो जगह हिल गया।